जय मसीह दी। जय मसीह जी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਗॉड ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਬਰਡਸ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀ 'ਚ ਨੇ, ਵਾਟਰ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਗॉड ਵੱਲ ਨਿਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਗॉड ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾ ਗੂਜ਼ ਬੰਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਗॉड ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਈਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਬੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮਦਰ ਦੀ ਵੂਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦ ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮਸੀਹਾ ਮੰਡਲੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਂਦੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਕੀਮਤੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੰਦਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਸਕੀਏ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸਾਮ 141 verse 1 to 4. I call upon you, O Lord, hurry to me. Hear my voice when I call to you. Second verse. May my prayer be like special perfume before you. May the lifting up of my hands be like the evening gift giving on the altar in worship. Third verse. Take control of what I say, O Lord, and guard my lips. Verse 4. Take away my desire to do evil or to join others in doing wrong. Don't let me eat tasty food with those who do evil. Hallelujah. Hallelujah. देखो प्रभु दे वचन जड़े ने, चाहे ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪੜੀਏ, ਚਾहे ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਸ ਪੜੀਏ ਜਾਂ 2 ਵਰਸਿਸ ਪੜੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡੀਪ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇजेस ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਔਰ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿਹੜੇ
होने चाहिए ने, किन्हां दे नाल असीं उठिए बैठिए, किन्हां दे नाल असीं फ्रेंडशिप रख के खाना खाइए। मेरे प्यारे प्रभु जी ने इन्नियां गल्लां सानूं समझाइयां होईयां ने कि असीं किहड़े वचन बोलने ने, अपनी जुबान तो अच्छे वचन बोलने ने, खराब बोलने ने, ईविल संसार तो दूर रहना, हर चीज सिखाइए। सो असीं बड़े शुक्रगुजार हैगे आ किस तरह किसी को फॉरगिव करना है। हालेलुया। आओ मिल के भजन गाइए। आओ अपनी हथ का जो साथ सानू प्रभु जी ने दिता, ताड़ियां मारते हुए साडे नाल जिथे भी तुसीं है जो साडे नाल उच्चियां आवाज़ां च गीत गाओ। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेतिया। जदों पुकारा मैं तैनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तैनू खुदाया। सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेतिया। मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच, मेरी दुआ हुण तेरे हजूर विच। पहुंचे वांग बखूर दे जा, मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेतिया। जिवें कुर्बानी क्षमा दी होवे, जिवें कुर्बानी क्षमा दी होवे। हथ चुक तैथों मंगा दुआ, मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेतिया। मेरे होठां दी कर रखवाली, मेरे होठां दी कर रखवाली। मुँह ते निगाहबान बिठा, मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेतिया। दिल न होवे मेरा बदिते मायल, दिल न होवे मेरा बदिते मायल। बदाना लेना जा, मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेतिया। जदों पुकारा मैं तैनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तैनू खुदाया। सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे वल तू छेतिया। मेरे वल तू छेतिया। हालेलुया 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 हालेलुया। आओ मिलके एक होर भजन गाइए। तेरे नाम ते जिथे खलोवा, कम होवन पूरे मेरे। यीशु जी, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान ही आवे नेड़े। तेरे नाम ते जिथे खलोवा, कम होवन पूरे मेरे। हालेलुया। और मिल के बच्चे च लिखिया कि प्रभु जी दे नाम हेठा सब ने झुकना है। आज हर बीमारी, हर दुख प्रभु दे नाम झुकदा है। ऐसे करके असीं गाने आ कि तेरे नाम ते जिथे खलोवा, कम होवन पूरे मेरे। ना दुख आवे ना मुसीबत आए। जिथे प्रभु जी ने, जिथे प्रभु जी का नाम है, उत्थे किसी तरह की कोई रुकावट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जे तुसीं इस गल ते विश्वास करते हो
ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਓ। चलो मिल के गाइए। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत आवे ना दुख मुसीबत आवे ना शैतान आवे नेड़े। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। यीशु ने आखिया दो जातिन जिथे मेरा नाम पुकारनगे। यीशु ने आखिया दो जातिन जिथे मेरा नाम पुकारनगे। जंगल नदियां विच पहाड़ा जंगल नदियां विच पहाड़ा जाओ ये विच वेड़े। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। ना तेनू नदियां डबोवन ना ही अगवी साड़े। ना तेनू नदियां डबोवन ना ही अगवी साड़े। यीशु राजा होवे तेरे यीशु राजा होवे तेरे हरदम चार चुफेरे। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। यीशु दी गल है जो कोई मनदा अब दी जीवन पावे। यीशु दी गल है जो कोई मनदा अब दी जीवन पावे। विच नरकां दे रुड़दे जांदे विच नरकां दे रुड़दे जांदे उल्टे चलदे जेड़े। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। कम होवन पूरे मेरे कम होवन पूरे मेरे कम होवन पूरे मेरे। हालेलुया हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਭਜਨ ਸੁਣੋਗੇ। तो इससे पहले कि कलाम शुरू किया जाए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दरख्वास्त करूंगा अगर अभी भी आपने कम्युनियन का सामान अपने पास नहीं रखा है तो जब आप ये कलाम देख रहे हैं सुन रहे हैं तो अपने पास रख लें। जैसे ही कलाम ख़त्म होगा हम लोग मिल के ऑनलाइन ये कम्युनियन लेंगे। तो आइए अपने आप को तैयार करते हैं आज के संदेश के लिए उस मैसेज के लिए जो परमेश्वर जी ने हमारे लिए तैयार किया है। आइए हमेशा की तरह सर झुकाते हैं 10 सेकंड के लिए और अपने आप को फोकस करते हैं ताकि प्रभु के इस संदेश को हम रूहानी कानों से सुने रूहानी आंखों से देखें और हमारे अंदर जाके बस जाए। हालेलुया।
हम लोग जब परमेश्वर पिताजी के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में ध्यान लगाते हैं, तो सम टाइम हमारी जो सोचें हैं वो सही नहीं होती। वी आर आइदर ऑन दिस एक्सट्रीम और दैट एक्सट्रीम। कई बार तो हम लोग इतना इस तरफ सोचते हैं, कभी इतना उस तरफ सोचते हैं। बहुत से लोग जिनके मन में ये है कि परमेश्वर दूर कहीं बैठे हैं स्वर्ग में, और हमारी तरफ निगाह लगा के उन्होंने रखी हुई है सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या गुनाह कर रहे हैं, ताकि वो हमें सजा दे सके। उनके मन में परमेश्वर की इमेज ये है कि ही इज ए राइचियस जज एंड ही हैज टू पनिश। और अपनी वो बात के लिए इस वचन को क्लेम करते हैं जो बुक ऑफ यशाया में है, बुक ऑफ अजाया चैप्टर 26 वर्स 21, यशाया 26 का 21। सी द लॉर्ड इज कमिंग आउट ऑफ हिज ड्वेलिंग। देखो यहोवा खुदा परमेश्वर पिता अपने सिंहासन से अपना स्थान छोड़ के आ रहे हैं। किस लिए? टू पनिश द पीपल ऑफ द अर्थ फॉर देयर सिंस, ताकि इस दुनिया के लोगों को उनकी गुनाहों के लिए सजा दे सके। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सम पीपल, वो ये सोचते हैं कि हमारे जो परमेश्वर पिता हैं, ही इज मर्सीफुल, ही इज काइंड एंड ही इग्नोर्स आवर सिंस। हमारे पापों से नफरत नहीं करते क्योंकि वो काइंड है, वो लविंग है। और वो जब ये बात सोचते हैं तो उनके मन में ये ख्याल आता है जिस वचन में है, बुक ऑफ साम 86 वर्स 15, भजन संहिता 86 का 15। बट यू लॉर्ड आर ए कंपैशनेट एंड ग्रेशियस गॉड। हे यहोवा खुदा, हे परमेश्वर पिता, आप दया और कृपा के परमेश्वर हो, स्लो टू एंगर, गुस्से में धीरज वाले हो, बट अबाउंडिंग इन लव एंड फेथफुलनेस, लेकिन वफादारी में और प्यार में आप भरपूर हो। तो ये दूसरा जो एक्सट्रीम है, वो लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें चूंकि प्यार करते हैं, चूंकि काइंड है, इसलिए हमारे गुनाहों की तरफ नहीं देखते। बट माय ब्रदर्स सिस्टर्स, बोथ दीज एक्सट्रीम्स आर नॉट टोटली राइट। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे परमेश्वर पिता जहाँ पे एक प्यार करने वाले परमेश्वर है, माफी देने वाले परमेश्वर है, वहां पे राइचियस जज भी है। वैसे धर्मी जज हैं, वकील हैं, वो जज हैं कि वो सच्चा न्याय करना चाहते हैं, गुनाहगारों को गुनाह की सजा भी देना चाहते हैं। पर चूंकि वो प्यारे पिता हैं, प्यार करते हैं हमसे, तो इससे पहले कि उनका रैथ हमारे ऊपर आए, उनका क्रोध हमारे ऊपर आए, वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग अपनी गुनाहों से फिर जाएं, माफी मांगे और हमें माफ कर सके। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ही इज ईगर टू फॉरगिव अस। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, चूंकि परमेश्वर हमारे फॉरगिविंग परमेश्वर है, हमारे ऐसे पिता है जो हमें माफ करते हैं, तो वो चाहते हैं हम भी एक दूसरे को माफ करने वाले बने। आपको याद होगा प्रभु के वचन में हमें सिखाया गया कि परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया था, मीन्स अपने जैसा बनाया था, और वो चाहते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह एक दूसरे को माफ कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जब उनके डिसाइपल्स ने प्रार्थना कैसे करनी चाहिए पूछा था, तो उन्होंने एक प्रार्थना दी थी जिसे हम आज लॉर्ड्स प्रेयर के नाम से जानते हैं। उस प्रार्थना में प्रभु जी ने कुछ बातें हमें कही थी कि हमें रोज मांगनी चाहिए। उसमें ये बोला था उन्होंने कि हमें शुरुआत करनी चाहिए, हे हमारे पिता जो आप स्वर्ग में हो, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे दो। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, ये रोज मांगना है। क्या मांगना है? एंड फॉरगिव अस आवर डेट्स एज वी हैव आल्सो फॉरगिवन आवर डेटर्स। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनका ये मानना था, ये हमें सीख थी कि रोज हमें परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एवरी डे हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो सही नहीं होता। लेकिन उस माफी मांगने के हकदार हम तभी होंगे जब हम दूसरों को माफ करेंगे। बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज के जिस संसार में हम रह रहे हैं, हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं,
हम इतने मतलबी हो चुके हैं कि हम तो चाहते हैं कि परमेश्वर हमें रोज माफ करे, एवरी सेकंड हम गुनाह करते हैं उसमें हमें माफी मिले, लेकिन किसी और को माफ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, आइए देखते हैं प्रभु हमें क्या कहते हैं। प्रभु हमें सिखाते हैं हमें क्विकली दूसरे को माफ करना चाहिए। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19, रोमियो की इंजील 12 अध्याय वर्स 19। डू नॉट टेक रिवेंज, बदला मत लो माय डियर फ्रेंड्स, हे मेरे मित्रों बदला मत लो, बट लीव रूम फॉर गॉड्स रैथ, लेकिन जो भी हालात हैं वो परमेश्वर के क्रोध पर छोड़ दो, उनको दे दो वो क्या करना चाहते हैं। बिकॉज इट इज रिटन, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, इट इज माइन टू एंज, मेरा काम है बदला लेना, आई विल रिपे सेज द लॉर्ड। प्रभु कहते हैं मेरा काम है बदला लेना, मैं प्रतिदान जरूर दूंगा। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे परमेश्वर हमें बार बार ये हिदायत देते हैं हमें एक दूसरे को माफ करना है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, बदला लेने में खुशी नहीं है, माफ करने में खुशी है। जो एक इंसान एक दूसरे को माफ कर सकता है, दूसरे को माफ कर सकता है, उनको भी जिन्होंने उसके साथ बुरा किया है, उसकी जिंदगी खुशहाल होती है, उसमें जॉय होता है। माय ब्रदर सिस्टर, इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये शिक्षा दी है कि हमें एक दूसरे को क्विकली माफ करना चाहिए। और माय ब्रदर सिस्टर्स, माफी मांगने वाले से ज्यादा माफी देने वाला महान है। प्रभु के वचन ऐसे ही हमें सीख देते हैं। प्रभु हमें ये बात क्यों बार बार कहते हैं, इसका एक ही रीजन है कि जो माफी वाली जिंदगी है वही असली खुशी वाली जिंदगी है। तो प्रभु का आज जो संदेश है हमारे लिए, उसका टाइटल है फॉरगिवनेस द ट्रू जॉय ऑफ लिविंग। फॉरगिवनेस द ट्रू जॉय ऑफ लिविंग, क्षमा जीने की सच्ची खुशी। आज हम इसी तरह की एक कहानी पढ़ने सुनने जा रहे हैं, उस पर मनन करने जा रहे हैं, जो प्रभु जी के फॉरगिवनेस को और इंसान की इस टेंडेंसी को कि मैं माफ नहीं करना, उसको दर्शाती है। ये हमें कहानी मिलती है बुक ऑफ जोना में। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आज का इंसान कितना अठी कितना धर्मी है, अपने लिए सब कुछ चाहता है, लेकिन वही चीज जो हम परमेश्वर से चाहते हैं दूसरों को नहीं देना चाहते। उस समय की बात है, निनवे नाम का एक शहर था जिसके ऊपर प्रभु जी का क्रोध आना था, क्योंकि निनवे के लोग बहुत सारे गलत काम कर रहे थे। उस समय का अगर हिस्ट्री जाके देखें तो पता लगता है कि निनवा जो शहर था वो वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी था इस पूरे संसार में। ये एक कौम थी असीरियंस लोग, जो असीरिया का किंगडम था, उसकी एक कैपिटल थी, और उस समय का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर था। लेकिन निनवे के लोगों में या असीरियन लोगों में और इजराइल लोगों में बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, क्योंकि असीरिया ने बहुत बार इजराइल पर चढ़ाई की, उन्हें हराया, उनके ऊपर अत्याचार किए, इसलिए दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। लेकिन प्रभु ने एक इजरायली को चुना अपना ये संदेश देने के लिए, उस असीरियंस को जिनके बारे में ये मशहूर था कि वो इतने क्रूर हैं, इतने निर्दयी हैं, इतने बेरहम हैं कि जब अपने दुश्मन पर चढ़ाई करते हैं तो ना सिर्फ उसे हराते हैं, सारे दुश्मन के लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, छोटों को मार देते हैं। और सिर्फ मारते नहीं हैं, फिर उनका सर धड़ से अलग करके उन सरों का एक पहाड़ बना देते हैं, ताकि आसपास की दूसरी कौमें देखें और हमसे डरें। ऐसे क्रूर दुश्मन को मैसेज देने के लिए परमेश्वर ने जोना नबी को चुना। जोना नबी को हुक्म किया परमेश्वर ने कि तू निनवे में जा और मेरा ये संदेश दे। तो जो निनवा शहर था वो इजराइल से करीब 500 मील दूर था। तो आइए ये कहानी क्विकली देखते हैं और इसके ऊपर मनन भी करेंगे। बुक ऑफ जोना चैप्टर 1। प्रभु का मैसेज क्या आया जोना नबी को? अराइज, गो टू निनवे, दैट ग्रेट सिटी। प्रभु जी कहते हैं जा उस बड़े शहर निनवे में जा और उनको मेरा संदेश दे, फॉर देयर विकेडनेस हैज कम अप बिफोर मी, क्योंकि जो बुरे काम कर रहे हैं अब मेरा ध्यान उनके ऊपर है और मेरा रहत उनके ऊपर आने वाला है। लेकिन जाके एक बार तुम उन्हें समझा। लेकिन देखिए क्या होता है कि वो जो जोना नबी है, बजाय निनवे जाने की अपोजिट डायरेक्शन में जो समुद्र का जहाज जा रहा था उसमें बैठ जाता है, जो तरशीश की जगह जा रहा है, जो 2500 माइल्स दूर है। माय ब्रदर एंड सिस्टर, ही इग्नोर्स द कॉल ऑफ गॉड। बहुत बार हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा करते हैं,
प्रभु हमें जो कहते हैं उसका पालन नहीं करते, बल्कि वो काम करते हैं जो प्रभु के काम से अपोजिट है। भाई ब्रदर सिस्टर, बहुत ही बार हम लोग डर जाते हैं शायद, या हमें लगता है हम सफल नहीं होंगे जो प्रभु काम कह रहे हमें करने के लिए, या हमें लगा कि हमें इसकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। शायद ऐसा ही जोना नबी को लगा, पर हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का हुक्म ना मानना हमें ज्यादा महंगा पड़ेगा, ना कि परमेश्वर का हुक्म मानना। तो जोना नबी क्या करता है, उस समुद्र के जहाज में बैठ जाता है, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, वहां पे जोर की आंधी लाते हैं। आंधी जब लाते हैं तो वो समुद्र का जहाज डूबने लगता है। जब जहाज डूबने लगता है तो जहाज का कैप्टन जोना के पास आता है। जोना आराम से सो रहा है, तो उसको आके बोलता है, उठ, अपने परमेश्वर पुकार, हो सकता है तेरा परमेश्वर हमारी दुआ सुन ले। लेकिन जब कोई असर नहीं होता तो फिर पासा फेंक के वो डिसाइड करते हैं, जरूर यहाँ पे समुद्र इस जहाज में कोई ऐसा इंसान है जिसने कोई ना कोई गुनाह किया है। वो कौन सा इंसान है, ये ढूंढने के लिए वो थ्रो कास्ट करते हैं, यानी पासा फेंकते हैं। वो पासा जोना के नाम पे आ जाता है। तो जब जोना से पूछा जाता है तो वो कहता है, क्या कहता है देखते हैं, बुक ऑफ जोना चैप्टर 1 वर्स 12। जोना कहता है, पिक मी अप एंड थ्रो मी इनटू द सी। कहता है, हाँ मैंने कोई गुनाह किया है, आप मुझे उठाओ और इस समुद्र के अंदर फेंक दो, एंड देन द सी विल बिकम काम, और तब समुद्र शांत हो जाएगा। बिकॉज आई नो कि ये जो आपके ऊपर विपत्ता है ये मेरी वजह से आई है। देखिए, प्रभु का नबी है, उसे पता है मैंने गुनाह किया, गलत किया, लेकिन गुनाह को करेक्ट नहीं करना चाहता, बल्कि अपने आप को वो मारना चाहता है। लेकिन प्रभु का प्यार देखिए, प्रभु की फॉरगिवनेस देखिए, वो उसको मरने नहीं देते। होता क्या है कि जैसे उसको समुद्र में फेंका जाता है, समुद्र तो शांत हो जाता है, लेकिन जोना नबी शांत नहीं होता। उससे एक मछली खा जाती है। परमेश्वर एक बड़ी मछली को हुक्म देते हैं, वो मछली उसे निगल जाती है। अब वो जोना नबी जो है मछली के पेट में 3 दिन और 3 रातें रहता है। जब वहां पे वो 3 दिन और 3 रातें रहता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जो दुख उसे अंदर मिलता है, जो वहाँ की गर्मी, जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, उसे बाध्य करता है सोचने को। जब वो सोचता है उसे पता लगता है मैंने गलती की है, तो फिर वो प्रभु से प्रार्थना करता है। जब प्रभु से प्रार्थना करता है तो प्रभु फिर उसे माफ करते हैं, उसके इस गुनाह को फिर माफ करते हैं, और उस मछली को हुक्म देते हैं, मछली अपना उगल के उसको बाहर साफ जमीन पे भेज देती है। My brothers and sisters, God is same for you, for me. He forgives us all the time. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार हम पुकारें हमें वो माफ करते हैं। My brothers and sisters, disobedience जितनी मर्जी करें, जितना मर्जी हम कोई गलतियां करें, लेकिन जब एक बार सच्चे मन से अपना मन फिरा लेते हैं, उनके पास आते हैं, तो हमें माफ कर देते हैं। अब प्रभु फिर दोबारा उसके पास आते हैं। प्रभु का मैसेज सेकेंड टाइम आता है, ये बुक ऑफ जोना चैप्टर 3 में है। तो उसे फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, बुक ऑफ जोना चैप्टर 3 वर्स 2, Arise, go to Nineveh, that great city, and preach it the message that I have told you. कहते हैं, जा, फिर कहता हूँ तेरे को उस निनवे शहर में जा, और जो संदेश मैंने तेरे को दिया तो जाके उनको बता। तो जोना नबी जब वहां पे पहुंचता है, इस बार वो उनकी हुक्म की पालना करता है। जब वो उस शहर में पहुंचता है, जैसे शहर के अंदर दाखिल होता है, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। कहता है, 40 दिन रहेंगे, परमेश्वर का प्रकोप अपने ऊपर आने वाला है, आपके ऊपर आने वाला है, अपने आप को संभाल लो, अपने आप को ठीक कर लो। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो क्रूर लोग, वो दुष्ट लोग, जिसके पास उनका एक दुश्मन अपने खुदा का मैसेज लेके आया, और उनकी बात पे विश्वास करते हैं। तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु के वचन में लिखा है, सो द पीपल ऑफ निनवे बिलीव्ड गॉड and proclaimed a fast and put on sackcloth. तो जो निनवे के लोग होते हैं वो प्रभु के इस संदेश को मानते हैं, फिर वो उपवास रखते हैं और अपने ऊपर टाट के कपड़े पहन लेते हैं, और अपने ऊपर सारे लोग, छोटे से लेकर बड़े लोग तक, यहाँ तक कि उनका जो किंग होता है, किंग इतना क्रूर था जिसने ये सारा कुछ जुल्म किया था, उसका मन भी दहल जाता है, उसका मन भी बदल जाता है। उसके बारे में लिखा है, वो भी अपने जो राजसी कपड़े होते हैं, रॉयल कपड़े होते हैं, उतार के टाट के कपड़े पहन लेता है, फास्ट करता है, और अपने सर के ऊपर राख मल लेता है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिर्फ यही नहीं, वो एक फतवा जारी करता है, एक डिक्री जारी करता है,
हुक्म जारी करता है पूरे निनवे के एरिया में। क्या कहता है? लेट नाइदर मैन नॉर बीस्ट हर्ड और फ्लॉक टेस्ट एनीथिंग। कहते हैं ना कोई इंसान ना कोई जानवर कुछ भी ना खाए। डू नॉट लेट देम ईट और ड्रिंक वाटर, यहां तक कि कोई पानी ना पिए, कुछ खाए ना। और साथ में कहता है लेट मैन एंड बीस्ट बी कवर्ड विद सैकक्लॉथ एंड क्राई माइटली टू गॉड। सब लोग और सारे जानवर अपने आप को टाट के कपड़ों में ढक लो और जोर जोर से परमेश्वर की प्रार्थना करो। यस, लेट एवरीवन टर्न फ्रॉम हिज इविल वे, और हर कोई अपना जो बुरा रास्ते पे चल रहा है उससे हट जाए। फ्रॉम द वायलेंस दैट इज इन हिज हैंड, और जिस तरह के हम लोग अत्याचार कर रहे हैं उससे दूर हो जाए। एंड प्रभु के वचन में लिखा है वर्स 9 में, हु कैन टेल इफ गॉड विल टर्न एंड रिलेंट। क्या जाने परमेश्वर की इच्छा बदल जाए और वो हमारे ऊपर कृपित ना हो, और जो दंड वो हमें देना चाहता है वो दंड ना दे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर के जो भी पास आता है, जो भी सच्चे दिल से माफी मांगता है, प्रभु जी उसको माफ करते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, जिनकी उम्मीद जिनकी आशा परमेश्वर के ऊपर है, प्रभु का वचन कहते हैं दे वोंट बी अशेम्ड। और यही होता है जब प्रभु जी उनके ये सारे काम देखते हैं, जब उन्हें लगता है कि उन्होंने सच्चे मन से माफी मांगी है, तो वो अपनी जो भी प्रकोप उनके ऊपर आने वाला होता है वो रोक देते हैं, और माय ब्रदर सिस्टर को प्रकोप के ऊपर नहीं लाते हैं। शायद लगता है कहानी यही खत्म होगी, पर यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। अभी तक तो हमें परमेश्वर की फॉरगिवनेस पढ़ा है। अब आगे देखिए कि इंसान क्या सोचता है। जब जोना नबी ये सारी बातें देखता है उससे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में आके प्रभु से कहता है, प्रभु मुझे पता था यू आर स्लो टू एंगर एंड अबंडेंट इन लविंग काइंडनेस। मुझे पता था कि आप गुस्सा करने में धीमे हो, अपना प्यार देने में बहुतायत से देते हो, इसीलिए मैंने आपसे बात नहीं मानी थी, इसलिए मैं भाग गया था, क्योंकि मुझे पता था कि आप उनको माफ कर देंगे। वो इतने दुष्ट जिन्होंने इतना अत्याचार किया, आप उनको माफ कर देंगे। Therefore now, O Lord, please take my life। कहता है प्रभु मेरी जिंदगी ले लो, मेरा जीवन ले लो, मुझे मौत दे दो। For it is better for me to die than to live। मेरे लिए मरना ज्यादा बेहतर है, इस तरह कि मैं अपने दुश्मन को आपके प्रकोप से वंचित होता देख सकूं। माय ब्रदर सिस्टर, बहुत ही बार हम भी ऐसे लोग होते हैं, अपने दुश्मन पे अत्याचार होना देखना चाहते हैं, प्रभु की माफी नहीं देखना चाहते। We think we are more righteous, we deserve forgiveness, but they don't deserve forgiveness। लेकिन प्रभु आगे क्या कहते हैं? Is it right for you to be angry? कहते हैं कि तेरे लिए जायज है, सही है, तू इस बात पे गुस्सा करे। लेकिन जोना नबी एक नहीं सुनता। वो क्या करता है, वो वहां से शहर से बाहर निकल के ईस्ट साइड में, शहर के ईस्ट साइड में जाके एक शेल्टर बनाता है। उस शेल्टर के नीचे जाके वो बैठ जाता है और बैठ के ये ध्यान से देखता है शहर की तरफ कि देखूं प्रभु का क्या प्रकोप आता है, कैसे प्रभु इनके ऊपर अपना जुल्म ठहराते हैं, अपना क्रोध कराते हैं। माय ब्रदर सिस्टर्स, आप प्रभु जी अपने नबी को वो शिक्षा देने जा रहे हैं जो हमारे लिए आज का मैसेज है। प्रभु जी अपने नबी को, जो उनको जानता है, पहचानता है, फिर भी उनकी बात नहीं समझ पा रहा, उसको समझाने के लिए क्या करते हैं, वो एक जहाँ जो नबी बैठा होता है वहां पे एक पौधा लगाते हैं, और पौधा इतनी तेजी से परमेश्वर की पावर से बढ़ता है कि उसका जो शेड है वो जोना नबी के ऊपर आ जाता है, और जोना नबी बहुत खुश होता है और प्रभु को कहता है वेरी ग्रेटफुल फॉर द प्लांट। माय ब्रदर सिस्टर्स, बहुत बार जब प्रभु हमारे ऊपर खुशी लाते हैं, हमको खुशी देते हैं, हम लोग बहुत खुश होते हैं। बट दिस वाज ए ट्रिक दैट गॉड वाज ट्राइंग टू प्ले टू हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड हिज मैसेज, और वही मैसेज हमारे लिए। तो हुआ क्या कि एक दिन में वो पौधा इतना बड़ा हुआ, उसने उसको शेल्टर दे दी। लेकिन दूसरे दिन प्रभु ने कहा किया, दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, परमेश्वर ने एक कीड़ा वहां पे भेजा। उस कीड़े ने जाके उस पेड़ को खाना शुरू कर दिया और वो पेड़ मुरझा गया। माय ब्रदर सिस्टर्स, प्रभु के वचन में लिखा है वर्स 8 चैप्टर 4, एंड इट हैपेंड व्हेन द सन अरोज, और ऐसा हुआ कि आकाश में जब सूरज चढ़ा, द गॉड प्रिपेयर्ड ए ईस्ट विंड, परमेश्वर ने पूर्वाई की हवाएं चलाई, एंड द सन बीट ऑन जोना's हेड, तो जोना के सर के ऊपर जब सूरज चमकना शुरू हुआ
जो शेड उस पौधे से मिलने से खत्म हो गई। He grew faint, वो निर्बल हो गया। And then he wished again death, फिर अगेन कहता है प्रभु जी, इट इज बेटर फॉर मी टू डाई देन टू लिव, मेरे लिए जिंदा रहना से ज्यादा मरना बेहतर है। अभी भी परमेश्वर की बात नहीं समझ सका। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, अब आता है कहानी का अंत। परमेश्वर उसे एक मैसेज देते हैं, ये मैसेज हम सब के लिए तो इस समय लोग सुन रहे हैं। प्रभु क्या कहते हैं? इज इट राइट फॉर यू टू बी एंग्री विदाउट अबाउट द प्लांट? कहते हैं कि इस जो पौधा मैंने लगाया था उसके लिए तुझे नाराज होना सही है? इज इट राइट? आगे जवाब क्या देता है? अभी बात नहीं समझ रहा, गुस्से से कहता है इज इट राइट फॉर मी टू बी एंग्री इवन टू द डेथ? कहता है हाँ, मेरा क्रोध करना उचित है, मुझे इतना क्रोध आ रहा है जैसे मैं बस में नहीं हूं और अपने प्राण ही दे दूं। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, अब प्रभु जी फिर उसे एक बात बोलते हैं। क्या कहते हैं? यू हैड पिटी ऑन दिस प्लांट फॉर यू हैड नॉट लेबर्ड नॉर मेड इट ग्रो। कहते तेरे उस प्लांट के ऊपर, उस पौधे के ऊपर तुझे दया आ रही, जो ना तूने अपने मेहनत से लगाया, ना तूने उसने मेहनत से उसे तूने ग्रो किया, जो एक रात को आया और अगले दिन खत्म हो गया। तो आगे अपना मैसेज देते हैं उसे, वर्स नंबर 11 जो कहानी का अंत है। क्या कहते हैं प्रभु जी? एंड शुड आई नॉट पिटी निन्वे? कहता तुझे उस पौधे पे दया आ रही है जो पौधा ना तूने लगाया ना उसको ग्रो किया, क्या मैं निन्वे शहर पे ऊपर तरस ना खाऊं विथ वेयर मोर देन 120,000 पीपल रहते हैं? वहां पे 1,20,000 लोग रहते हैं who cannot discern between their right hand and the left hand। वो लोग इतने ग्रस्त हैं अपने गुनाहों में कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। वो 1,20,000 लोग हैं, क्या मैं उनके ऊपर तरस ना खाऊं? और साथ में कहते हैं एंड मच अबाउट लिवस्टॉक, वो वहां पे जो जानवर रह रहे हैं उनका क्या कसूर है? उन जानवरों ने भी फास्ट रखा हुआ, उनका क्या कसूर है? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, with this message, with this sentence, with this message from the God, the story ends. So my brothers and sisters, हमारे लिए प्रभु का यही वचन है, यही मैसेज है, यही संदेश है आज का। We should always choose forgiveness। हमें हमेशा माफी देनी चाहिए, माफी को चूज करना चाहिए। My brothers and sisters, हम लोग चाहते हैं ना हम उन लोगों को माफ करो जिन्होंने हमें हर्ट किया, जिन्होंने हमें दुख दिया, जिन्होंने हमें निंदा चुगली की है, ना ही परमेश्वर उन्हें माफ करे। माय ब्रदर सिस्टर, अगर हम इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं तो प्रभु का वचन हमें बताता है वी आर लिविंग ए लाइफ ऑफ बिटरनेस एंड रिजेंटमेंट। हम कड़वेपन की और नाराजगी की जिंदगी जी रहे हैं। माय ब्रदर सिस्टर्स, हम चाहते हैं कि परमेश्वर उनको नुकसान पहुंचाए, उनको दुख पहुंचाए, उनके साथ कुछ बुरा हैपन हो जिन्होंने हमें दुखी किया। लेकिन माय ब्रदर सिस्टर्स, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम उन्हें दुखी नहीं करते, हम अपने आप को दुखी करते हैं, हम अपने आप को हर्ट करते हैं। प्रभु जी ने हमें क्या संदेश दिया था प्रभु यीशु मसीह जी ने? आइए देखते हैं बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 15। मत्ती की इंजील 6:15। इफ यू डू नॉट फॉरगिव अदर्स, अगर आप दूसरे लोगों को क्षमा नहीं करोगे, देन योर फादर विल नॉट फॉरगिव द रॉन्ग्स यू हैव डन। तो आपका जो परमेश्वर पिता है वो भी आपने जो गलत काम किए, जो गुनाह किए, उसको माफ नहीं करेगा। माय ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर ने हमें माफी दी है हमारे सब गुनाह की, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हर तरह के गुनाह की हमें माफी दी गई है। और हमें अगर हम अपनी जिंदगी में झांक के देखें, पिछली जिंदगी में क्या कुछ ऐसे ऐसे काम नहीं किए, एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम गॉड हैज फॉरगिवन अस। इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर्स, आज भी हमें माफ कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पता नहीं हमसे कितनी गलतियां होनी है, कितने गुनाह होने हैं, उसमें भी परमेश्वर हमें माफी देंगे। लेकिन जोना नबी अपने लिए माफी चाहता था। आप जो उसने गलती की थी जब वो उस मछली के पेट में तड़प रहा था, अगर प्रभु से उस समय माफ ना करते, वही रहने देता तो क्या होता उसका हाल। लेकिन प्रभु ने उसके ऊपर कृपा की। वही जोना नबी अपने फॉरगिवनेस को चिल्ला रहा था, मांग रहा था, और उसे मिली भी, लेकिन मिलने के बाद उसने उन लोगों को फॉरगिव नहीं किया जिनके ऊपर मूसा बैठ आने वाला था। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ वी आर लिविंग ए लाइफ ऑफ जोना, देन वी आर हर्टिंग आवरसेल्व्स। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर का जो ग्रेस निन्वे के लोगों के ऊपर आया था, वही ग्रेस हमें भी चाहिए।
और वही ग्रेस हमें दूसरों को भी देना चाहिए। अगर हम नहीं चाहते कि हमारा जिंदगी में खुशियां हम लूज ना करें, हमारी जिंदगी खुशहाल हो, तो हमें सबको माफ करना है, अपनी पास्ट हर्ट के लिए भी, अपने प्रेजेंट हर्ट के लिए और अपने फ्यूचर हर्ट के लिए भी। माय ब्रदर सिस्टर्स, अगर आप किसी ने आपसे कोई गलती की है, आपके साथ कुछ ऐसा किया कि आपके मन में उसके बारे में कोई तरह की बिटरनेस है, किसी तरह का कोई गुंजल पड़ी हुई है, तो आज प्रभु का संदेश हम सब के लिए है कि हम प्रभु से माफी मांगे, उस बच्चे को भी माफ करें और प्रभु से माफी मांगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमें सिखाया गया है कि वो माफी में तेज है। क्या लिखा है? बुक ऑफ जॉन, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, पहला यूहन्ना 1:9, इफ वी कन्फेस आवर सिंस, अगर हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, ही इज फेथफुल एंड जस्ट, परमेश्वर विश्वसनीय है और न्यायपूर्ण है, एंड विल फॉरगिव अस आवर सिंस, और हमारे गुनाहों को माफ कर देंगे, एंड प्योरीफाई अस फ्रॉम ऑल राइचियसनेस, और हमें सारे अधर्मों से साफ शुद्ध कर देंगे। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर, आखिर में बस मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहता हूँ। शायद आपके मन में इस समय क्वेश्चन चल रहा होगा, शायद आप सोच रहे होंगे, इज फॉरगिवनेस फेयर? I know it's not fair, but my brothers and sisters, forgiveness is not for fairness, forgiveness is not for justice, it's for grace. जो प्रभु ने हमारे ऊपर ग्रेस किया है, परमेश्वर चाहते हैं वही ग्रेस हम लोगों को दें। Forgiveness may not be fair, but this is the right thing to do. ये सबसे सही काम है जो हम कर सकते हैं। और my brothers and sisters, ये जो माफी है ये फ्री में नहीं आई है। आज अगर हम गुनाहों से माफ हुए हैं तो सोच के देखें, इस माफी के लिए प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता बेटा दान कर दिया। उन्होंने अपना खून बहाया, क्रूस पे अपनी जान दी, इतनी बड़ी कीमत दी, जिसकी वजह से हम आज गुनाहों से रहित हैं, हम वी आर फॉरगिवन फ्रॉम सिंस। माय ब्रदर सिस्टर, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे क्रूसीफाई हो रहे थे, वही लोग जो उनको क्रूसीफाई कर रहे थे, जो उनको तसीहे दे रहे थे, दुख दे रहे थे, उन्होंने क्या कहा था? फादर फॉरगिव देम, परमेश्वर ने माफ करो, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आई थिंक द लॉर्ड वाज सेइंग, आई नो दे डोंट डिजर्व इट, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट इवन देन गॉड, आई रिक्वेस्ट यू फॉरगिव देम। माय ब्रदर्स सिस्टर, इसी तरह जिन्होंने हमें दुख दिया है, हमें कष्ट दिया है, माय ब्रदर्स सिस्टर्स, they don't deserve it. Sometimes they even don't know what they are doing. कई बार मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है, कुछ ऐसी गलती उनसे हो जाती है जो शायद उनको पता भी ना हो, पर हमारे अंदर उसने ऐसा हर्ट किया कि उस बिटरनेस को अपने अंदर ला के हम उसके ऊपर चल रहे हैं। बट माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु का वचन यही कहता है, लीव जस्टिस टू गॉड, जो न्याय है वो परमेश्वर के हाथ में दे दें, हील योर बिटरनेस विद हिज ग्रेस, उनके ग्रेस से, उनकी महिमा से अपनी बिटरनेस को खत्म करें, उनको माफ करें, क्योंकि आज प्रभु का संदेश हमारे लिए है, फॉरगिवनेस इज द ट्रू जॉय ऑफ लिविंग। दूसरों को माफ करना ही सच्चे जीवन की खुशी है, या जीवन की सच्ची खुशी है। हालेलुया। आइए 1 मिनट के साथ झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और प्रभु से मिल के ये प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए, अपने लिए और सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं। अगर आप ईमान रखते हैं, अगर आपके मन में अभी भी किसी के मन में, किसी के बारे में, अपने मन में किसी के बारे में अनफॉरगिवनेस है, तो मेरे साथ शामिल हों। मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, मैं आपके लिए भी मांगता हूँ। हम सब मिलके प्रभु से दुआ करें कि हमारे अंदर जो वो बिटरनेस है वो खत्म हो। आइए मांगते हैं। परमेश्वर पिता जी, मैं जानता हूँ कि मुझे उस इंसान ने, इस इंसान को आप मुझे इस समय याद करा रहे हैं, कितना हर्ट किया है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, माय फादर, आई डोंट वांट टू कैरी दिस पेन एनीमोर। ये जो दर्द उसने मुझे दिया है, जो दुख उसने मुझे दिया है, मैं उससे हर सारी उम्र अपने साथ नहीं रखना चाहता। फादर, आई डोंट वांट टू बी बिटर पर्सन। मैं नहीं चाहता कि मैं बिटर पर्सन हूँ, इसलिए मुझे आपके ग्रेस की जरूरत है, आपके परोपकार की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है। प्रभु मुझे अपना ग्रेस दें ताकि वो जो मेरे अंदर हर्ट है वो खत्म हो जाए, मैं उसे माफ करूं। माय ब्रदर्स, माय फादर, आई फर्स्ट सीक
योर फॉरगिवनेस। सबसे पहले परमेश्वर पिता, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ उन सब बातों के लिए जिसकी वजह से मैंने लोगों को हर्ट किया है। मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ प्रभु जी। और साथ में आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने क्रूस पे अपनी जान दे के मैं सारे गुनाहों से माफ़ी दी है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। माय फादर, आई एक्सेप्ट दिस फॉरगिवनेस, आई थैंक यू लॉर्ड। बस आपसे मैं अपनी ज़िंदगी बदलता हूँ परमेश्वर जी। आपसे वायदा करता हूँ कि टुडे आई चूज फॉरगिवनेस अबव बिटरनेस। मेरे मन में जो भी बिटरनेस है उसको ख़त्म करूँगा। मैं उन सबको माफ़ करूँगा जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया आज तक और आने वाले दिनों में कराऊंगा। माय फादर, आई रिक्वेस्ट कि जब भी मुझे वो याद आए, वो दुख, वो तकलीफ जो उस इंसान ने, जो उस भाई ने, जो उस बहन ने मुझे दी है, तो मैं उसी समय उसे माफ करूंगा, तब तक जब तक कि वो दर्द जो है मेरे अंदर खत्म ना हो जाए। फादर, हील माय हार्ट विद योर ग्रेस। आपने ग्रेस से मेरे इस टूटे हुए दिल को, मेरे इस पेनफुल दिल को सही करें। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जिस तरह तुसी जानते हो, अज पहले अनाउंसमेंट भी की सी शुरू में। मेरी उम्मीद है तुसी अपने कोल हमेशा की तरह रोटी रख ली होगी, ड्रिंक्स रख रहे होंगे। असी अज की सभा कम्यूनल लैके प्रभु जी के प्रभु भोज शामिल होके खत्म करांगे। सो आओ प्रभु के वचन पढ़ांगे। प्रभु के वचन में जाके एक एक वचन पढ़ते हुए, देखते हुए, समझते हुए असी अज का प्रभु भोज लवांगे। और असी तुहाडे नाल गीत की शुरुआत कर रहे हैं। जो असी अज गीत गाइए तो मैं रिक्वेस्ट करांगा जे तुसी अजे तक भी अपने कोल रोटी ते ड्रिंक नहीं रखा, क्विकली रख लो ताकि असी मिल के प्रभु भोज लै सकीए। सो आओ मिल के गीत गाने हैं। तुहानू याद होएगा जो भी असी प्रभु के वंश इकट्ठे होंदे सी फास्टिंग वाले दिन, कम्यूनन वाले दिन, असी गीत गाते सी, वही गीत गान जा रहा। साडे नाल गीत भी गाई जाओ और नाल दे नाल कम्यूनन का सारा समान रखी जाओ। आओ मिल के गाने हैं, मैं तेरा बदन क्यों ना लूं नासरी। मैं तेरा बदन क्यों ना लूं नासरी, मैं तेरा बदन क्यों ना लूं नासरी, के पिन्हा है इसमें मेरी जिंदगी, मैं तेरा बदन क्यों ना लूं नासरी, मैं तेरा बदन क्यों ना लूं नासरी। जो खाए बदन मेरा तूने कहा, जो खाए बदन मेरा तूने कहा, रहेगा न हरगिज़ वो भूखा कभी, रहेगा न हरगिज़ वो भूखा कभी। आओ प्रभु जी के वचन पढ़ते हुए मिल के कम्यूनल लईए। मेरा ईमान है जेडे भी मेरे भैन भरा इस वे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तुसीं साडे नाल कम्यूनल शामिल हो। प्रभु तुहानू खूब बरकत दें। आओ प्रभु के वचन पढ़ते हैं। 1 Corinthians chapter 11 verse 23, 24 and 25 पढ़न लगे हैं। पहला करंथियन अध्याय 11 वर्ष 23 प्रभु जी के वचन कहते हैं, For I received from the Lord that which I have also delivered to you। जो सीख परमेश्वर जी ने मैंने दी है वही तुहानू में दी है। अपोस्टल पॉल कह रहे हैं, The Lord Jesus on the same night in which he was betrayed, उस रात जिस रात प्रभु जी ने मरवान लई धोखे नाल पकड़िया गया, he took bread, उन्होंने रोटी ली। आओ अपनी अपनी रोटी अपने हाथ च लीए ते अगला वचन पढ़िए। And when he had given thanks,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, he broke it, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, take, eat, this is my body which is broken for you, ਲਓ ਖਾਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਦਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, do this in remembrance of me, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਓ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਬਦਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਬਦਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁੜਵਾਇਆ ਸੀ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਬਦਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਖੂਨ ਵਹਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ और इस रोटी ਨੂੰ ਦਈਏ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Verse 25. In the same manner, he also took the cup after supper. ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, This cup is the new covenant in my blood. ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰਾਰ ਹੈ। This do as often as you drink it in remembrance of me. ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਓ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। For as often as you eat this bread, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ and drink this cup, ਤੇ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, you proclaim the Lord's death till he comes. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। So my brothers and sisters, let's take our cup, believe that this is that holy blood. This is that precious blood that Lord shed on the cross 2000 years back. 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी ऐसे लहू ਨੂੰ याद करते हुए प्रभु जी ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। सौ मिल के गीत गाने, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, गुनाहों से हमको धोता है, गुनाहों से हमको धोता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ਤੁਹਾਨੂੰ खूब आशीष दे। और सभा के अखीर ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਰਡਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਾਕਣ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਲਾਰਡਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। आओ एक बार फिर सिरां झुकाइए, अखा बंद करिए। झोलियां आईडी और प्रभु के वचन के राही जो ब्लैसिंग्स सानू अज आ रही ने, मिल रही ने, हमेशा की तरह उन्होंने ब्लैसिंग्स नाल अपनी झोली भर के प्रभु जी के इस भवन चों प्रस्थान करिए। प्रभु जी दी ब्लैसिंग्स आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना, आने वाले साल हमेशा साडे नाल रहन। यह साडा ईमान है, यह साडी कामना है। सो आओ रिसीव करिए इन्होंने ईमान दे नाल। The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. पंजाबी विच यहोवा तुहानू आसीस देवे अते तुहानू सुरक्षित रखे। यहोवा तुहाडे उपर मेहरबान होवे अते अपनी मेहर दर्शावे। यहोवा तुहाडे उत्ते कृपा दृष्टि नाल वेखे अते तुहानू शांति रखे, शांति देवे। आमीन आमीन आमीन। God bless you brothers and sisters। आज दी सभा शामिल होने लई प्रभु तुहानू खूब बरकत देन। आज दा जो कम्यूनियन असीं मिल के लिया, प्रभु भोज लिया, मेरा ईमान है ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ, ਨਵਾਂ डायरेक्शन देंगे। और जो असी प्रभु के नाल प्रार्थना की है, असी उस प्रार्थना से अपने आप को खरा उतारने की पूरी कोशिश करांगे प्रभु के सामर्थ्य राहें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य राहें। सो सबद अखीर विच असी तुहाडे नाल ओही गल जाहिर करना चाहांगे जो असी हमेशा करते हैं, प्रभु यीशु जिंदा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।